Welcome to the world's biggest maritime museum complex, the National Maritime Heritage Complex at Lothal, showcasing 5,000 years old maritime heritage of India. Asia's biggest underwater marine museum, world's tallest lighthouse museum, India's grandest naval museum. MOPSW shaping the vision of Honorable Prime Minister to reality. NMHC, the National Maritime Heritage Complex. The wait will soon be over. Hi everyone. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Today is 4th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, take your eyes off social media and do some needed introspection. Introspection is good. This is your friendly reminder to not let social media rob you of your precious time and mental clarity. Remember, who looks outside dreams, who looks inside awakes. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Ornery, matlab it is like chidchida, having or showing a habitually bad temper, angry. Cavern का मतलब होता है गुफा, a cave or a chamber in a cave, typically a large one. Numbing है, that is ubau, causing weariness, restlessness or lack of interest. Immaculate है, विशुद्धता, in a perfectly clean, neat or tidy manner. Untrammeled मतलब बेरोक, not deprived of freedom of action or expression, not restricted or hampered. So आज के ये vocab words हैं untrammeled, immaculately, numbing, cavern, ornery. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Question number 1. The average temperature in Delhi for the first 4 days of the month was reported as 58 degrees. Hypothetically, let us assume 58 degrees. It reported as 60 degrees for 2nd, 3rd, 4th and 5th days. The ratio of the temperature of 1st and 5th day was 7:8. Find the temperature on the first day. Very nice question. Answer. Question number 2. Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. So the marks obtained by them are A, B, C, D. क्या इसमें से सही आंसर होगा? Tell. So these are 2 questions for today. ये मेंस कोर्स है. कल हमने एक बहुत अमेजिंग क्लास में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं GS1, GS2, GS3, इवन GS4 में भी उसको समझा था. आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम और भी सारे जो क्रिटिकली, इवैल्यूएट, डिस्क्राइब, एनालाइज एटसेट्रा वर्ड्स को विद एग्जाम्पल, विद डेमोन्स्ट्रेशन आज समझेंगे. और साथ ही साथ एथिक्स भी आज कंटिन्यू होगा. और फिर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं GS1 एंड GS2. इसमें हम वर्ड हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे. दिस इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2024 का कोर्स है. और ये भी आज मॉर्निंग में जैसे हमने देखा करंट अफेयर्स और उस पर कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको फर्दर और हम बिल्ड करेंगे. दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. इसमें ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन हम कवर कर रहे हैं. फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी. ये आंसर राइटिंग है. आपको 3 टॉपिक्स पे एक शॉर्ट समरी तैयार करना है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, गौतम बुद्धा एंड जूनोटिक डिसीजेस. ये सारे बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ. डेली बेसिस में 3 टॉपिक्स बस आप प्रिपेयर करते जाओ. विद इन नो टाइम आपका बहुत अच्छा रिपोजिटरी तैयार हो जाएगा और ये आपको मेन एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा. ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, 3 टॉपिक्स अ डे, 1, 2, 3. प्रिपेयर अ शॉर्ट समरी और उसको शेयर भी करिए दिस वेबसाइट पे. ये सोशल मीडिया अपडेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा? बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर, सन टेम्पल कोणार्क, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई. आंसर. विच अमंग दीज वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी अकॉर्डेड अ GI टैग इन इंडिया? नवारा राइस, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क या फिर किन्नौरी शॉल? बूझो तो जाने. आप हैं परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे.
ऑपरेशन विजय के दौरान घायल अवस्था में भी शत्रु के बंकरों को ध्वस्त किया और देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। व्हाट इज ट्रेंडिंग में है, इंडियाज यूकी भांभारी शाइन्स एज अ विनर ऑफ द मैलोर्का ओपन 2023 टेनिस। देन द ग्रेटेस्ट इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर, हैव फेथ इन योरसेल्व्स। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। थिंक लाइक चैंपियंस। आप हैं अल्लूरी सीताराम राजू जी, रंपा विद्रोह के नायक जिन्होंने जनजातीय समाज को संगठित कर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया। अल्लूरी सीताराम राजू जी को जाना जाता है धरती अब्बा, मान्यम वीरड्डू या फिर जतन ओराव। यहाँ बात करते हैं हम हंसा मेहता जी की, बोर्न ऑन दिस डे। आप इंडियन फ्रीडम एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट थी, राइटर थी। During the freedom struggle, she participated in anti-imperialist struggles like picketing shops, selling foreign goods. She established the Desh Sevika Dal in 1930 and was imprisoned by British in 1932 on account of these activities. Freedom fighters. Mehta was one of the 15 women members of the Constituent Assembly of India. On 14th of August 1947, she delivered a powerful speech at the Assembly advocating for democracy, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया। सो ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और स्पेशली विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे। नाउ लेट अस हैव अ क्विक व्यू ऑन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो दिस इज जुलाई 4 ट्यूसडे। फर्स्ट जो न्यूज़ है ये है वाटर का वॉर्स, तमिलनाडु फ्लैग्स शॉर्टेज इन इट्स शेयर ऑफ कावेरी वाटर। Then the tarnishing of Putin's aura of power, what went wrong for the Russian president, editorial take है। And India meets Kuwait in SAFF summit clash. This is political. Prime Minister to host Mr. Xi, Putin, Sharif virtually for SCO summit। तो एक वर्चुअल होस्ट है, वर्चुअल समिट होगा। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली होस्ट करेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शाहबाज शरीफ एंड सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट्स एज इंडिया चेयर कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज SCO और इसकी हेड ऑफ स्टेट मीटिंग। तो यहाँ सारे लीडर्स होंगे। हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को यहाँ पर अडॉप्ट करने की बात करेंगे। Sources say 4 outcomes will be adopted at the summit, including the New Delhi Declaration. इसमें हम काउंटर कर रहे हैं रेडिकलिज्म को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है, नेगोशिएशन होगा, ऑल्दो इट इज अनक्लियर कि इसमें आगे कैसे बात चलेगी, बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो सर्टेन प्रोविजंस हैं वो इलीगल है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसको हम वापस रिविजिट करेंगे। Then Supreme Court wants updated report on law and order in Manipur. Give details of money spent on ads. Supreme Court ने गवर्नमेंट को कहा। तो पब्लिक एक्सचेकर जो मनी है वो वेल स्पेंड है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन कर रही है। Awakening the Buddha within, seeking enlightenment. Buddhist monks pray on the occasion of Guru Purnima at Mahabodhi Society in Bengaluru on Monday. So this is Awakening the Buddha within. इंडियन रिफाइनर्स सेट टू स्टार्ट पेइंग इन युआन फॉर रशियन ऑयल। तो रशियन ऑयल हम परचेज कर रहे हैं, बट अब हम पेमेंट युआन में कर रहे हैं। तो इंडियन रिफाइनर्स अभी चाइनीज युआन में पेमेंट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न सैंक्शंस अभी मॉस्को में है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो रशिया को ऑयल सेल करने में डिफिकल्टी हो रही है, बट इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। इंडिया लार्जेस्ट बायर है सी बॉर्न रशियन ऑयल का, इवन एज इट कास्ट्स अबाउट फॉर हाउ टू पे फॉर इट अमिड शिफ्टिंग सैंक्शंस। तो इंडिया अब यहाँ पे युआन में पेमेंट करेगा। US डॉलर जो है ये मेन ग्लोबल ऑयल करेंसी रहा है, परचेज जो इंडिया ऑयल करता है, बिकॉज इंडिया इज ऑयल इंपोर्टर। बट अब हम युआन में भी पेमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि जो चाइनीज युआन है ये भी स्ट्रेंथन हो रहा है और चाइनीज युआन के थ्रू यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। ओके, एक और वर्ड है वो है डी डॉलराइजेशन। इस वर्ड से आप क्या समझते हैं, डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब होता है? ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। Pending for 2 years, Supreme Court to take up pleas against dilution of Article 370 on July 11th. So this is the front page. ये second page है, and then this is page number 3. A raptor getting ready. See, ये है शिकरा, small bird है, prey है, distributed widely in the country. इसका prey widely distributed in the country है और ये spot हुआ है अहमदाबाद में. So ये है raptor.
रैप्टर का क्या मतलब होता है? रैप्टर क्या प्रेडेटरी बर्ड्स होते हैं? रैप्टर ओके। एयरक्राफ्ट में भी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, उधर रैप्टर वर्ड काफी यूज किया जाता है। तमिलनाडु फ्लैग्स शॉर्टेज इन इट्स शेयर ऑफ कावेरी वाटर। सो कावेरी इज वन सच रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है कर्नाटका में और फिर ये जाती है तमिलनाडु में। जो उसका अपर कोर्स होता है उसमें जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है उससे पानी आता है, जो लोअर कोर्स होता है उसमें साउथ वेस्ट से आता है, और जो लोअर कोर्स होता है उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी आता है, विंटर रेन्स। सो ये कावेरी लाइफलाइन है कर्नाटका और तमिलनाडु का, और रिवर वाटर शेयरिंग में काफी डिस्प्यूट्स होता है बिकॉज वाटर एज अ रिसोर्स इज लिमिटेड, पॉपुलेशन इज ऑन राइज, कंजम्पशन इज ऑन राइज, सो वी फाइंड डिफिकल्ट टू प्रोवाइड वाटर ओके। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। ये है स्मोक एंड मिरर्स पॉलिटिकल पुतिन्स और ऑफ पावर। इसमें हम ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। वागनर ग्रुप एंड देन पुतिन, देन रशियन क्राइसिस एटसेट्रा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग द वाटर। सी, इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश टू स्कीम टू डिलीवर पोर्टेबल वाटर, मतलब पीने योग्य पानी। 25 करोड़ हाउस होल्ड हैं इंडिया में 2016, जहां पे टैप वाटर कनेक्शन जिसमें 55 लीटर पर कैपिटा एवरी डे ऑफ पोर्टेबल वाटर आए, ये अभी भी रेयरिटी है मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया में। 19.5 हाउस होल्ड जो हैं ये अकाउंट कर रहे हैं। द पॉइंट इज हर घर में जल जीवन मिशन में हर घर में हमें पोर्टेबल वाटर देना है, पाइप्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर बाय 2024। बिकॉज अगर वाटर साफ है, साफ सुथरा पानी है, तो हाफ ऑफ द डिसीजेस तो तभी हम उनके थ्रेट को नलीफाई कर देते हैं। सो ये कमिटमेंट है, बट इसमें हम लैग हो रहा है बिकॉज ऑफ फंड्स का पॉसिटी होता है, मैन पावर नहीं होता है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया था, बट ये काफ़ी बड़ा स्केल है। कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, रशियन यूक्रेन वॉर हो गया, तो ये मिशन स्लो हो गया है बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। 75% अभी कवर है, टारगेट है, लेट अस सी। तो ये डिस्करेजिंग पिक्चर विलेजेस में भी दिखा रहा है कि कुछ सर्टिफाइड हैं बट वहां पर स्टिल फंक्शनल वाटर नहीं आ रहा है। तो सर्टिफाइड है मतलब ग्राम पंचायत है, फॉर्मली एक्नॉलेज्ड कॉम्प्लायंस, बट स्टिल वहाँ पे डिफिकल्टी है, वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं है। तो इसलिए इसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना ज़रूरी है चीज़ों का। गुजरात, हरियाणा, पंजाब यहाँ पे फेयरली हाई बेस है। जल जीवन मिशन और उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टेबल वाटर, साफ पानी। Then this is Russia. India should refuse America's NATO plus bait. Bait मतलब क्या होता है? It is a like trap, लालच. Bait, NATO plus. See. तो नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये है अटलांटिक ओशियन, इधर है वेस्टर्न यूरोप और इधर है अमेरिका। इन दोनों के बीच में काफी क्लोज टाइज थे, और यहाँ पे था रशिया इज द सोशलिज्म, और ये वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका कैपिटलिज्म के चैंपियंस है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और फिर वॉर हो गई सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म में, तो तब ये नेटो ग्रुप बना। तो नेटो ग्रुप में ये था कि जितने भी मेंबर्स हैं नेटो ग्रुप में, अगर एक भी मेंबर पे अटैक होता है तो वो कंसिडर किया जाएगा पूरे ग्रुप पे अटैक। ये एक काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है। तो एक तरफ नेटो हो गया और दूसरी तरफ यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, बट नेटो का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। और इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि नेटो का डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज नेटो में जो मैक्सिमम फंडिंग होती है वो यूएसए के द्वारा होती है, और ऑब्वियसली यूएसए का जो मैंडेट होता है, जो प्लान होता है, नेटो मोर और लेस उसी को एग्जीक्यूट करता है, बिकॉज मैक्सिमम फंडिंग नेटो की यूएसए से आ रही है। तो कई बार जो यूएसए की वॉर्स हैं, जैसे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हुआ, सीरिया ऑपरेशन, इराक ऑपरेशन, अभी इवन यूक्रेन में भी, ये नेटो बैकफुट में, यूक्रेन तो फ्रंट है बट एक्चुअली नेटो यूक्रेन को पूरा सप्लाईज और सारे इक्विपमेंट्स, वेपनरी एटसेट्रा प्रोवाइड करा रहा है। तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। इंडिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, यहाँ चाइना है और यहाँ पे पाकिस्तान है, ये दोनों हॉस्टिलिटी है इंडिया। इन द पास्ट हमारी वॉर भी हो चुकी है। तो इंडिया को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हद तक रशियन इक्विपमेंट्स पे भी डिपेंडेंट होना पड़ता था, बट अब रशियन इक्विपमेंट्स भी डिफिकल्टी में है और रशिया में भी एट टाइम्स डिफिकल्टी नज़र आ रही है रिगार्डिंग दिस सप्लाईज एटसेट्रा। तो इंडिया अपने ऑप्शंस को एक्सपैंड करना चाहता है। सो दैट इज़ वाई हम रशिया के अलावा इजराइल, यूएसए, फ्रांस, हमारे ऑप्शंस एक्सपैंड कर रहे हैं। तो नेटो के हम प्रॉपर मेंबर नहीं बने, बट हम नेटो प्लस एक डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ नेटो के अगर मेंबर बन जाए तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा,
और ये चीज इन केस अगर चाइना के साथ डिफिकल्टी होता है तो नेटो की बैकिंग से हमें डिफेंस करना इजी हो सकता है। दिस इज वन ओपिनियन, वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेटो अलायंस में इंडिया को जाना चाहिए या नहीं? नेटो प्लस फ्रेमवर्क है, इसमें इंडिया को ग्रुप में शामिल करना है या नहीं? तो जयशंकर साहब ने तो ये कहा कि नेटो टेम्पलेट डज नॉट अप्लाई टू इंडिया, पर अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ तो यहाँ पर अगेन ये मैटर उठ के आया, क्या नेटो प्लस इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए? तो नेटो एक ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है, 31 कंट्रीज है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स यूरोप के हैं। जब डिसोल्यूशन हुआ सोवियत यूनियन और कोल्ड वॉर एंड हुआ तो नेटो का रेलेवेंस खत्म हो गया था, पर नेटो सरवाइव करता है। फिनलैंड 31st मेंबर की तरह ज्वाइन करता है अप्रैल 2023 में। यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाहता है और इसी बात की लड़ाई है। स्वीडन इज वेटिंग इन द विंग्स। नेटो अपीयर्स टू बी गेटिंग द मच नीडेड ग्राउंड फॉर सर्वाइवल, क्योंकि जो रशिया का एग्रेशन आया है स्पेशल ऑपरेशंस यूक्रेन पे, तो उससे नेटो को फिर से एक लाइफलाइन मिल गई, invasion of Ukraine. तो NATO swelling its expanse, some analysts even see the onset of Cold War 2.0. So if you introspect, if you think carefully, तो ये जो wars होते हैं, इस war से किसको benefit हुआ? Think. NATO plus refers to a security arrangement of NATO and the 5 treaty allies US, Australia, New Zealand, Japan, Israel, South Korea as members. ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन की ये बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, चाइना को ये एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं। तो यूएस की पॉलिसी आई थी, चाइना को कॉम्पिटिटर मानता है, रशिया को एनिमी मानता है, इंडिया को फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। तो दिस इज नेटो। अब नेटो में नेटो प्लस की बात है। ऑब्वियसली नेटो प्लस इज मोर अबाउट कंटेनिंग चाइना। तो नेटो प्लस में ऑब्वियसली इट इज मिलिट्री, बट चाइना इज मोर अबाउट ट्रेड। तो क्या अगर नेटो प्लस में जो फुल्ली नेटो नहीं होगा, उसका एक एक्सपैंडेड पेरिफेरल वर्जन होगा, अगर हम नेटो प्लस अम्ब्रेला में आते हैं तो हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रोग्राम होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी होगी मेंबर स्टेट्स के बीच में, मॉडर्नाइजेशन होगा डिफेंस का, कैपेबिलिटीज ऑब्वियसली एनहेंस होगी, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी। प्लस रशिया के साथ एट टाइम्स डिफिकल्टी है, तो हमारा भी जो एक्सपैंड होगा, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रशिया नहीं होंगे। रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है और रशिया और चाइना के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ रही है। रशिया और इधर पाकिस्तान भी इवन टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हम कंप्लीटली रशियन हार्डवेयर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ये हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। सो दैट इज वाई इंडिया भी अपने ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। तो ये रशिया के साथ क्या रिलेशन क्रम्बल हो जाएगा? एट वन मोमेंट हमें ये भी ध्यान रखना है कि रशिया एक ट्राइड एंड टेस्टेड हमारा रिलेशन रहा है। 1971 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद रशिया काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड रहा है। तो इंडिया को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहिए। यूएस लेड अलायंस के साथ अगर हम अलाइन करते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि हम यूएस के फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएंगे, यूएस की वॉर्स हमारी वॉर्स हो जाएगी। तो चाइना के साथ जो इशू है ये बायलेटरल इशू है, इसको अननेसेसरी हमें ग्लोबल इवेंट बनाने से भी बचना चाहिए। प्लस इंडो पैसिफिक में ताइवान में भी यूएस और चाइना लॉगर हेड पे है। इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखता है। सी, इंडिया को एट टाइम्स मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है, बट हमारी पॉलिसी ये रही है कि वी वांट टू बी ऑटोनॉमस, वी वांट टू बी ऑटोनॉमस। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यूक्रेन वॉर में रशिया से भी ऑयल परचेज किया बिकॉज वी आर स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमी है। एट द सेम टाइम हम यूएस भी जाते हैं और वहाँ पे हम स्टेट ऑनर मिलता है हमें वहाँ पे। सो दिस इज वॉट इंडिया की जो पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट की। और प्लस जो रीजनल कोऑपरेशन है वो भी हमारी प्रायोरिटी है। बायलेटरल इश्यूज को हम बायलेटरल इश्यूज की तरह ही डील करना चाहते हैं। तो इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं इसमें सिक्योरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। नेटो में बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज हैं, नेटो की हेल्प से ये सारे इश्यूज काफ़ी हद तक हेल्प भी मिलेगा सॉल्व करने पर, बट एक फिर न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस भी आ जाएंगे। इंडिया ऑब्वियसली अभी क्वाड में भी काफ़ी न्यूज़ में था, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, एशियन नेटो बोला गया इसे एज पर चाइना। और क्या ये एक बेट भी हो सकता है? तो इंडिया को बहुत केयरफुली अपने सारे ऑप्शंस देख के नेटो प्लस पे डिसीजन लेना चाहिए। अ स्टॉक टेल बिफोर द ग्लोबल स्टॉक टेक, and then Mallapuram, Palakkad, Wayanad lag behind other Kerala district, the Kerala files, and the rise of India's total coal production in the first quarter 2000 notes के जो है 76% रिटर्न हो गए। रशिया रिकैप्चर्ड फ्रॉम रशिया लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू यूक्रेन। फ्रेश IMF लोन अभी पाकिस्तान को मिला है। एंड दिस इज बालासोर ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, इसमें भी मैनुअल एरर बताया जा रहा है एक्सीडेंट का रीजन।
ये पॉलिटिकल है, बट इसमें हम जानेंगे लीगैलिटी ऑफ द दिल्ली ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ May 19 में, GNCTD, और इसमें ये है कि क्या जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसकी ऑटोनॉमी क्या वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओवरराइडिंग पावर हो जाएंगे। लेट अस सी। तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ May 19 में, गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991, और took away the services from the jurisdiction of Delhi government. Services had been earlier restored to the Delhi government by the Supreme Court in a landmark judgment May 11, 2023. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है no authority is empowered to direct anyone that an order of the court shall have no effect and shall not be followed. कोई भी authority empowered to direct anyone कि order of the court shall not have no effect, shall not be followed. And since the ordinance does not cite any new ground for nullifying the judgment, it becomes legally unsustainable. Let us wait. ऑर्डिनेंस कॉन्फर करता है कि पोस्टिंग, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी मैटर जितनी भी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज में है, ये सब चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, अदर्स इसको मैनेज कर पाएंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट को रन करने के लिए गवर्नमेंट का स्टाफ चाहिए होता है, ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, और ये ऑफिसर्स का पोस्टिंग, ट्रांसफर एटसेट्रा कौन हैंडल कर रहा है, तो इनडायरेक्टली फिर वो ऑफिसर्स को भी वहां पे डिक्टेट कर लेता है। तो इससे फिर दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर में ये डिस्प्यूट्स हो जाते हैं LG में। इसको भी हम फिर से रिविजिट करेंगे। ये है ग्रीड। गांधी जी ने कहा है नीड तो फुलफिल हो जाती है, ग्रीड का कोई लिमिट है नहीं। सो ग्रीडफ्लेशन एंड इट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, हाउ कंज्यूमर्स अल्टीमेटली डिसाइड प्राइस। कई बार आपने देखा है इन्फ्लेशन है, कीमतों में बढ़ोतरी है। कई बार हम शॉपिंग करते हैं तो हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो टेंडेंसी होती है ना, इसको मटेरियलिज्म बोलते हैं, मटेरियलिज्म। और इसमें एक्सेसिव मटेरियलिज्म में कई बार हमें ब्रेन वॉश भी किया जाता है, हमें ट्रेन किया जाता है, कंडीशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो वो द पॉइंट इज कि एट टाइम्स हम अननेसेसरी पैसे खर्च करते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। एट टाइम्स हम फोमो करते हैं। फोमो क्या होता है? स्टूडेंट को यूपीएससी निकालना है और वो बहुत डिटरमाइंड है, पैशनेट है कि मुझे यूपीएससी निकालना ही है। फोमो अब ये हो जाएगा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, 1 लाख की कोचिंग नहीं करूंगा तो फिर मेरा नहीं निकलेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो स्टूडेंट इस डिसीजन को लेता है, बट एट टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट खुद से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता कि इज द स्टूडेंट इज रेडी टू मेक दिस मूव। आपको अभी बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसा जंप करते हो, तो उससे क्या होता है, चीज़ें वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू एंड अप पेइंग मनी एंड एंड अप वेस्टिंग टाइम। ये भी एक टाइप ऑफ लाइक ग्रीडफ्लेशन हो जाता है। कई बार हम बुक्स बहुत सारी परचेज करते हैं बट हम उसको पढ़ते नहीं है। तो द पॉइंट इज कि हमें एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में। मेनी ऑफ यू आर न्यू, तो आई वुड सजेस्ट यू एक लाइन ड्रॉ करो कि पहले जो मैंने पढ़ा है, मैं उसको खरीदा है, जिसमें इन्वेस्ट किया है, पहले मैं उसको पढ़ूंगा। अब बुक्स को पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, आपको बहुत फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। विजिट एनसीईआरटी वेबसाइट। एनसीईआरटी वेबसाइट की जितनी भी किताबें हैं, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, और दिस जनरल साइंस भी आप देखो, जनरल साइंस, इन किताबों को पढ़ो। आपने इन किताबों को पढ़ लिया, आपकी 90% यूपीएससी की प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, मल्टीपल बेनिफिट। जैसे हम देखते हैं ना, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन न्यूज़पेपर देखते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तीसरा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, सिलेबस देखो। आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं चीज़ों की फिर। ओके, सो दिस इज दैट कि नीड का सब है, ग्रीड का देयर इज नो लिमिट। नो योर इंग्लिश। सी माई सेल्फ हम कई बार यूज़ करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए चीज़ों को। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई बार हम ये यूज़ करते हैं कि कुछ एम्फेसाइज करना है तो हम उसके आगे माई सेल्फ लिख देते हैं, लाइक दैट। यस, तो एक रिफ्लेक्सिव वे में हम इसको एट टाइम्स यूज़ करते हैं। A graduate is one who has got a first degree at a university. He is a graduate of Calcutta University. स्कूल, डिपार्टमेंट कंसर्न, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएट जो होता है वो ग्रेजुएट जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो ग्रेजुएट वहाँ का हो जाता है। अंडर ग्रेजुएट वो होता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में है और जो वो फर्स्ट डिग्री देख रहा है, अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट, देन फिर उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट। हैंडकरचिफ होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, एक कपड़ा है, हेड कवरिंग का कपड़ा होता है। कोलोक्यूअल है हैंकी। ओके,
तो कवर शेफ होता है, कवर हेड को कर रहा है ये, ऑलराइट। देन फॉर्चूटस का मतलब होता है हैपनिंग बाय चांस, एक्सीडेंटल है, इट वाज अ फॉर्चूटस डिस्कवरी, फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून, फेट, फॉर्च्यून, ओके। देन ये वर्ड है affectedly genteel, or to carry an air of affected importance, to be snobbish and haughty, grandiose है, hoity toity है, like that, okay. So this is highfalutin, okay, highfalutin। अब ये है, दिस इज क्विज, एंड देन यहाँ पे बात है विजन 2047 सिविल कोड। देन दिस इज ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स P-8A पेट्रोल एयरक्राफ्ट लैंड्स इन तमिलनाडु। फ्यूचरिस्टिक टेक सेवी सुप्रीम कोर्ट आ रही है, आउटशाइंस द गैवल लोको पायलट्स। इजराइल एंड वेस्ट बैंक का डिफिकल्टी है, फ्रांस में राइट्स हो रहे हैं, टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल। चाइना सीक्स टू एक्सपैंड कोऑपरेशन विद रशियन नेवी, श्रीलंकन क्रेडिटर्स प्लेटफॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ईज हुआ है जून में, मोमेंटम मॉडरेट है, मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए आता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आरबीआई 2000 के नोट 76% आ गए हैं, सेंसेक्स ने नया पीक हिट किया है, एंड स्पाइस जेट है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। नाउ नीरज चोपड़ा सी, परसिस्टेंस एंड हार्डवर्क, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर, अश्योर्ड इन हिज ओन स्किन एंड आइडेंटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन एंड आइडेंटिटी, जैसे हो उस पर फोकस करो, योर वर्क शुड स्पीक अबाउट यू, ओके। सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर अश्योर्ड इन हिज ओन स्किन एंड आइडेंटिटी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। दिस इज विंबलडन। Was India's hot summer of 2023 portend, मतलब डरावनी चीजें of things to come। तो IMD ने बताया इस बार हीट वेव्स ज़्यादा है, और हीट वेव ज़्यादा है तो इट इज़ अगेन नॉट गुड। मिल्कमैन जिसे कवर कर रहे हैं, देखो आने वाले टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सी लेवल भी राइज हो रहा है, तो हीट वेव ज़्यादा सीवियर होने वाली है और फ्रिक्वेंट होने वाली है। जो समर सीजन है ये भी ज़्यादा होगा, वेदर में भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो वेदर का पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। एक वर्ड होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट, दोनों में डिफरेंस बताइए। देन तो कुछ एरिया में बहुत रेनफॉल है, कहीं नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है, ऐसी चीजें हो रही है, तो वाटर साइकिल, क्लाइमेट साइकिल इम्पैक्ट हुआ है। सेम चीज बताया था यूएन, जो यूएनईपी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी की, उस रिपोर्ट ने। IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने भी सेम बताया, एक्सट्रीम रेनफॉल्स और हीट वेव, तो एक्सट्रीम्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, टेम्पोरल स्पेटियल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हाई मानसून रेनफॉल है, वेरिएबिलिटी है, ड्राई एंड हॉट एक्सट्रीम्स है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट है, वाटर पोर्टेबल वाटर नहीं होगा, और ये सब नहीं होगा हीट वेव से, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्टॉर्म्स और दिस साइक्लोन ज़्यादा आएंगे, इंटेंसिटी सीवियरिटी बढ़ रही है। जैसे लैंड बेस्ड अगर हीट वेव होता है तो उससे क्या होता है, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, सॉइल मॉइस्चर कम होगा, तो ड्रायर कंडीशन होगी, फसल को नुकसान होगा। फिर ड्रायर सरफेस होगी तो वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन करेगी और हीट वेव और एम्पलीफाई होगी, तो एक विशियस साइकिल फीडबैक लूप चालू हो जाएगा। तो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी टेक स्ट्रॉन्ग दिस, इसमें डिसीजंस ले। मैरीन हीट वेव का भी एक रोल होता है, मैरीन हीट वेव है। अब क्या है कि बहुत सारा जो समुद्र का पानी है एसिडिफिकेशन हो रहा है और सी लेवल राइज हो रहा है, जैसे आर्कटिक है वो नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में मेल्ट हो जाएगा कंप्लीटली। सो इनसे भी टेम्परेचर जो ओशन का है वो चेंज हो रहा है, और ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर दिस हीट बैलेंस बनाने के लिए। हीट बैलेंस, ओशन में जो ओशन करंट्स होते हैं, जैसे वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, तो ये एक हीट बैलेंस बना के रखते हैं। अब क्या होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जमीन हीट होती है समर के टाइम पे, तो लो प्रेशर एरिया होता है, और फिर समुद्र से ऐसे हवाई आती है, क्रूड वे में इसी को मानसून बोलते हैं। अब बिकॉज हीट वेव ज्यादा होगा तो मानसून इवेंट्स भी इम्पैक्ट होंगी। तो ओवरऑल जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था, ओवरऑल टोटल वाटर सेम है, रेनफॉल सेम है, बट स्पेटियल टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अल नीनो का जो फिनोमिनन होता है वो इस बार देखने को मिल रहा है, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, और ये जब आता है तो इंडिया में रेनफॉल थोड़ा इम्पैक्ट होता है। तो द होल आइडिया इज कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, और क्लाइमेट चेंज जो रियलिटी है इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, और ये जो हीट वेव है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, मलेरिया रिपोर्टेड इन द यूएस आफ्टर 20 ईयर्स। तो मलेरिया बॉर्न डिसीजेस, मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस, ये वेक्टर्स होते हैं। सेल इन द आई दैट परसीव कलर, तो इसको कोन सेल्स बोलते हैं, कोन सेल्स। कोन होता है और एक रॉड होता है, रॉड क्या होता है आंसर,
Then finally made to create blue light in 1992, light emitting diodes. Chromatic aberration होता है, phenomenon of blue and red light converging at different points. Flowering plants होते हैं, 10% of these have natural blue colors. Then रेले का एक्चुअल नाम ये था, रेलेज लॉ होता है 1/λ⁴ स्ट्रक्चरल कलरेशन. ओके, सो दिस इज साइंस एंड दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. सो आज हमने क्या पढ़ा, क्विक रिकैप, क्विज देखा, लोकल केसेस ऑफ मलेरिया, hot summer of 2023, portend of things to come, Neeraj extraordinary achiever, assured in his own skin and identity. Then gone with the Windies, this is sad news, West Indies नहीं खेल रहा है वर्ल्ड कप, क्वालिफाई नहीं हो पाया. स्पाइस जेट. Then this is Sensex, RBI, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ईज्ड इन जून. श्रीलंका का क्रेडिटर, चाइना एंड रशियन नेवी में कोऑपरेशन बढ़ रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि नेटो प्लस हमें क्यों टेम्पटिंग लग रहा है. ये बेट भी हो सकता है. टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल, इजराइल एंड फ्रांस में राइट्स. लोको पायलट्स हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक सेवी सुप्रीम कोर्ट बन रही है. जो बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी थी, ये एक ह्यूमन एरर थी. ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स P8A इंडिया में लैंड हुआ. यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डेलिब्रेशन है, विजन 2047. देन दिस इज इंग्लिश और यहाँ पे है ग्रीडफ्लेशन. ग्रीड को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, ग्रीडफ्लेशन. देन द लीगैलिटी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस, इस पर हम फिर बात करेंगे. ओके, देन ग्लोबल स्टॉक टेल एंड दिस इज नेटो प्लस का बेट, क्लियरिंग द वाटर मतलब पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी. अ रैप्टर गेटिंग रेडी and this is awakening the Buddha within, and this is yuan for Russian oil, and this is SCO का summit. So this is today's newspaper. अब आपके सबमिशंस देखते हैं. 27 जून 2023. तो देखिए 3 टॉपिक थे, बड़े आसान से टॉपिक हैं. गंगा नदी, रक्षा विनिर्माण और मानव पशु संघर्ष. इस पे आप तैयार करो. ये होमवर्क 10 वीडियो से देखने से ज़्यादा बेहतर है आप एक ही आंसर राइटिंग कर लो. इसमें आपको ज़्यादा लर्निंग होगी, ज़्यादा फायदा होगा. स्वरांजलि, दिस इज रियली गुड. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको बनाना था, 1 पेज का नोट बनाया. देखो कितने अच्छे से सब समराइज कर दिया. कॉजेस क्या है, पॉपुलेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वंडरफुल, दिस इज रियली गुड. फिर आपने इसका इम्पैक्ट बताया, लॉस ऑफ लाइफ, मेजर्स क्या होने चाहिए, ये बड़े अच्छे मेजर्स हैं. गुड, प्रोजेक्ट टाइगर, इको सेंसिटिव. और फिर आपने वे फॉरवर्ड भी बता दिया. जैसे यहाँ 1 2 3 4 लिखे हैं ना, ऐसे सब जगह 1 2 3 4 करते हैं नंबरिंग. ओके, वेरी नाइस. दीपेश फॉर्म में है, दिस इज रियली गुड, ही इज डूइंग रियली वेल. तो ये बहुत अच्छा है. गंगा रिवर सिस्टम, फीचर्स क्या है, स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉपी इज रियली नाइस. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अबाउट, कॉजेज, इम्पैक्ट, ऑब्जेक्टिव. तो सी कितने हैंडी नोट्स तैयार हो रहे हैं. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने बताया, सिग्निफिकेंट, इंडिया का इंडिजिनस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वेरी गुड. नंदिनी, दिस इज रियली गुड. सी कितना अच्छा डायग्राम है यहाँ पे. ज्योग्राफी मतलब डायग्राम, नंबरिंग करो 1 2 3 4. देखो दिस मैप इज सो गुड, वेरी गुड. टोपोग्राफी. सो पूरा रिवर गंगा हमने तैयार कर लिया. इससे 1 क्वेश्चन इज 100% अभी शॉर्ट है. देन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बताया आपने, गुड, वेरी गुड. अचीवमेंट्स. तो सी इन सबको अब हमें रिवाइज भी करना है, कंसोलिडेट करते जाना है. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी आपने बहुत अच्छे से लिखा. दीज आर रीजंस, इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड. वंडरफुल. मंजू, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रियली नाइस. रिवर गंगा क्या है, सत्तोपंथ से आपने यहाँ पे बताया. सी अब आपको ये याद हो गया. तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू टेल, जितना लिखोगे चीजें उतनी याद रहेगी. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड मंजू. देन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के वेरियस एस्पेक्ट्स बताए, फैंटास्टिक. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी सी सारे मिसाइल्स आ गए, चैलेंजेस, गुड, वेरी गुड. अमरजीत, दिस इज गुड. रक्षा विनिर्माण, स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर और स्वदेशी पहल. फिर आपने रिवर गंगा के बारे में बताया. देखो ये कितना बढ़िया डायग्राम है, आपने सारा रिवर गंगा का फ्लो बता दिया. गुड, वेरी गुड. तो इस तरीके से पार्टिसिपेट. दीज नोट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट होगा. आप इसी पे वापस फॉल बैक करोगे, रिवाइज करोगे. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.